نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور جو رغبت رکھے، ام ملت ابراہیم، دیکھیں جیسے یہاں پہ ان آیا، اب یہ رغبت رکھنا نہیں ہوگا، اس کا اپوزٹ میننگ دے گا آپ کو۔ یرغبو ان، اس سے کیا ہو جائے گا؟ منہ موڑنا۔ اگر یہ ان نہ ہو تو یرغبو کا مطلب ہوتا ہے رغبت رکھنا یا اس کی خواہش رکھنا، یا کہیں پہ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، یعنی کہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، یہ بھی ایک اس کا معنی آتا ہے، یعنی خواہش رکھنا، امید رکھنا۔ لیکن جب اس کے ساتھ عین ان جڑ جائے گا تو اس کا مطلب منہ موڑنا ہو جائے گا۔ اور جو منہ موڑے گا ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، اور کون منہ موڑے گا؟ الا من سفیہا، سوائے جو سفیہا بے وقوفی کرے یا بے وقوف بنائے، نفسہ اپنے آپ کو، اپنے آپ کے ساتھ بے وقوفی کرے یا اپنے آپ کو بے وقوف بنائے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَا، البتہ یا بے شک، استفینا، استفا یعنی چننا، نہ ہم نے چنا اس کو، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، پھر دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، نیکوکاروں میں سے ہے۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہے کہ وہ بالکل راہ راست پر تھے، لیکن اس کو جاننے کے باوجود اگر ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑ رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دوبارہ یقین دہانی کرا رہا ہے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی چنا، اور وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ اس قال لہ ربہ، جب کہا اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم یعنی سر جھکا دے یا فرما برداری کر دے، یا رب میرے احکام کی پیروی کرو۔ قال، اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اسلمت، میں نے سر جھکا دیا، یعنی میں نے پیروی کی یا میں نے فرما برداری کی، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی۔ یعنی کہ یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، کس کے آگے ہم اپنا سر جھکا رہے ہیں، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ چاہے تو تمام جہان والوں کو ہمارے تابع بنا سکتا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، دنیا کا فائدہ لینے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، بلکہ تمام جہان لوگوں کا، سب کا مالک، سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ چاہے تو کسی کو بھی جو ہے ہماری طرف موڑ دے، کسی بھی بگڑے کام کو ہمارے لیے بنا دے، کسی بھی دشمن کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دے، کسی بھی نفرت کرنے والے کے دل میں ہمارے لیے عزت پیدا کر دے، یہ ہمارا رب العالمین ہے۔ لیکن پھر بھی ہم جو ہے انسانوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ وَوَصَّى، اور وصّا وصیت کی، بہا اس بات کی، اس بات کی فرما برداری کی، ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹے کو، وَيَعْقُوبُ، یہاں پہ دیکھیں پیش سے معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے فاعل ہیں، یعنی کہ کون سا کام کر رہے ہیں؟ وصیت کرنے کا۔ وصیت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی تو ابراہیم ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی، ان دونوں نے ہی اپنے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنی، یہاں پہ یا میرے کے لیے، یا بنی، یا اے میرے بیٹے، بے شک اللہ، ان اللہ اصطفیٰ چن لیا ہے، لکم الدین تمہارے لیے، دین، الدین کون سا دین؟
यहाँ पे देखिए अद्दीन आया, खास दिन, कौन सा दिन है? इस्लाम। फला तमूतुन्ना, फला बस ना, ता तुम्हारे लिए, ये देखिए मीम मौत है, मौत से, मीम मौता मौत, तुम मरना, ये नून शब्द किस लिए है? नून सकीला कहते हैं ताकीद के लिए, यानी कि हरगिज ना मरना। फला तमूतुन्ना, तुम हरगिज ना मरना, ठीक है, यहाँ पर बस तुम हरगिज ना मरना, इल्ला मगर, व अंतुम और तुम, मुस्लिमून मुसलमान हो, यानी कि जब भी मौत आए तुम देखो कि तुम इस्लाम पर ही हो। तो यही फिक्र हमारे अंदर भी हमें होना चाहिए कि हम अल्लाह की इताअत करते हुए इस्लाम पर, राह रास्त पर, अल्लाह की दी हुई हिदायतों पर अमल करते हुए हम जिंदगी गुजारते रहें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि मौत को कब आना है। तो अल्लाह ताला से इसलिए दुआ भी मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नुल खातिमा, यानी कि और अल्लाहुम्मा सब्बितनी इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि जब भी मौत आए हमें ला इलाहा इल्लल्लाह वाली, यानी ईमान वाली मौत आए। और इसके लिए इंसान को हर दिन ही कोशिश करते रहनी चाहिए कि वो अल्लाह की फरमाबरदारी में ही अपना दिन गुजारे। अम कुंतुम, या तुम थे, शुहदा मौजूद या हाजिर, हम कहते हैं ना शाहिद, गवाह। एक शाहिद कौन हो सकता है? जो उस सिचुएशन पर वहां पे हाजिर था, तो उसी से शोहदा यानी कि मौजूद होना। शोहदा मौजूद, इज जब, हजरा हाजिर हुई, याकूब याकूब को, ठीक है, हजरा याकूबू होता तो यहाँ पे हाजिर होने वाले याकूब हो जाते, लेकिन हाजिर हुई याकूब पर, क्या हाजिर हुए? अल मौतू, मौत हाजिर हुई, यानी कि मौत आई याकूब अलैहिस्सलाम को। इस काला, तब उसने कहा, लिबनी ही, जब उसने कहा, लिबनी ही, अपने बेटों को, मा ताबुदूना, किसकी तुम इबादत करोगे? माँ यूजली हम क्या करते हैं ना, क्या तुम इबादत करोगे, अब यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे, किसकी तुम इबादत करोगे? मिन बादी, मेरे बाद। सुनने में एक जैसा साउंड करता है बादी, इसको देखना होगा आपको, यहाँ पे या लगा हुआ है तो इसका मतलब है मेरे बाद, ठीक है। कई बार सिर्फ मिम बादी रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो उसके बाद हो जाएगा, यहाँ पे मिम बादी या होने की वजह से मेरे बाद। क़ालू, उन्होंने कहा, नअबुदु, हम इबादत करेंगे, इलाहका, तुम्हारे इलाह की, का यहाँ पे किसके लिए? तुम्हारे, तुम्हारे इलाह की, व इलाह आबाई का, और तुम्हारे बाप दादा के इलाह की, माबूद की, यानी कि सबका माबूद कौन है? वाहिद अल्लाह ताला है। और यहाँ पे बाप दादा का नाम दिया जा रहा है, इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक, इलाह वाहिदा, यानी कि सबका एक ही इलाह था और सबका एक ही इलाह है। व नहनो, और हम, लहू, उसी के, मुस्लिमों ताबे हैं, फरमाबरदार हैं। तिल का उम्मतुन, ये उम्मत है या वो उम्मत है। तिल का एक्चुअली इशारा बईद के लिए आता है और उम्मतुन यहाँ पे बोलता है, इसलिए ये मोहन्नस का सीगा। तिल का उम्मतुन, वो उम्मत, कद खलत, गुजर गई, यहाँ पे कद किस लिए है? ये माजी को करीब करने के लिए, यानी कि अभी अभी गुजरी है, करीब में है, करीब ही गुजरी है, यानी कि अरब, जो मुश्रिकान मक्का थे, ये इन लोगों से, यानी कि इन पैगम्बरों से खूब अच्छी तरीके से वाकिफ थे। ऐसी बात नहीं थी कि बहुत अरसे पहले गुजर गए हैं और इनके बारे में ये नहीं जानते। तो कद का मतलब होता है इसको करीब के लिए, हम माजी को, माजी बईद को करीब करता है, यानी कि अभी अभी वो उम्मत थी, गुजर गई, लहा, उसके लिए, यानी कि उस उम्मत के लिए, माँ कसबत, जो उसने कमाया, कसबत में ये था आगे मुअन्नस का सीगा, उम्मतुन के लिए। वलकुम, और तुम्हारे लिए, माँ कसब, तुम, जो तुमने कमाया, वला तुसलूना, और नहीं तुम सवाल किए जाओगे, यहाँ पे पेश मजहूल, ठीक है, ना सवाल किए जाओगे या ना पूछे जाओगे, एक ही मतलब है, अम्मा, उस बारे में,
कानू यामलून, वो करते थे। यानी कि तुमसे उनके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, तुमसे तुम्हारे बारे में ही सवाल किया जाएगा। क्योंकि एक तरफ क्या है कि पैगंबरों पर हम प्राउड रहते हैं, जैसे हमें आज भी देखें हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, इस बात का हमें बहुत वी फील प्राउड, लेकिन उनकी हिदायतों पर अमल नहीं करते और हम समझते हैं कि उनकी उम्मत होना हमारे लिए काफी है कि आखिरत के दिन हमें निजात मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे वाज़ा किया जा रहा है कि उनके बारे में तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा, तुम जो अमल करोगे उसी के बिना पर तुम्हारी आखिरत होगी। वक़ालू, और उन्होंने कहा, कूनू हूदन, हो जाओ हूदन, यहूदिया, और नसारा या नसारा, तहतदू, तुम हिदायत पालोगे या तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। यानी कि क्योंकि यहूदी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे और नसरानी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे, लेकिन फिर भी ये अलग अलग मजहब बनाए हुए मुसलमानों को भी ये दावत दे रहे थे कि जो यहूदी है वही राह रास्त पर है और नसारा कहते थे कि वही राह हिदायत पर है। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुल कह दो, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि तुम इन सब से कह दो, बल मिल्लत इब्राहिम, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत या उनका तरीका क्या था, हनीफा, वो एक अल्लाह के हो जाने वाले थे। उनका इबादत का तरीका क्या था, वो सिर्फ एक रब को मानते थे, एक अल्लाह को मानने वाले थे। और तुम्हारी हालत क्या है, किसी ने रसूलों को अपना पैगाम रब बना लिया है, किसी ने बुतों को भी शरीक कर लिया है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने वालों से कहा जा रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करो, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो जो मुशरिकों में से नहीं थे, सिर्फ एक रब की इबादत करने वाले थे, एक रब के आगे अपने आप को उन्होंने झुका दिया था। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और नहीं थे वो मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से, यानी कि उन्होंने अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं किया था। क़ुलू, कह दो, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वमा, और जो उनजिला इलैना, जो नाजिल किया गया हम पर, वमा उनजिला, और जो नाजिल किया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम वल अस्बाती, और उनकी औलाद, वमा, और जो ऊतिया, ये मजहूल है, दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम व ईसा अलैहिस्सलाम, वमा, और जो कुछ दिया गया, ऊतियन नबीयूना, नबियों को, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, यानी कि जितनी भी किताबें नाजिल हुई इन तमाम रसूलों पर, नबियों पर, हम उन सबको मानते हैं। यानी कि हम मानते हैं कि मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम पर, यानी कि तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, हम इन सब को मानते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ जब कभी भी नबियों पर, हम उन सब को मानते हैं और तमाम पैगंबरों को हम मानते हैं। ला नुफर्रिकु बैन अहद मिनहुम, और हम नहीं फर्क करते किसी को भी। हम ये नहीं कहते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत पहुंचे हुए रसूल हैं और ईसा अलैहिस्सलाम को कोई कम मर्तबा है, इस तरीके से हम किसी को भी फर्क नहीं करते। वनहनु, और हम, लहू, उसी के, मुस्लिमून, फरमाबरदार हैं, हम अपने रब के फरमाबरदार हैं। फ़इन, पस अगर, आमनू, वो ईमान लाए, बिमिस्ली, जैसा कि, माँ आमन तुम ईमान लाए हो। क्यों कहा जा रहा है कि जैसे कि तुम ईमान लाए हो, क्योंकि यहूदियों ने क्या किया, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को ही सुपीरियर मानकर उन्हीं तक अपनी शरीयत को उन्होंने रख ली, और ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स ने ईसा अलैहिस्सलाम को ही सुपीरियर समझकर वहीं तक वो रुक गए। और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से मबऊस किए गए, तो मुसलमानों ने जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाए और बाकी तमाम रसूलों पर भी ईमान लाए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे कि तुम ईमान लाए, बिही, उस पर, फ़क़द इह्तदौ, तो वो हिदायत पा गए। ये देखिए फ़अलू के वजन पर है, तो वो हिदायत पा गए। अगर से वो हम जैसे ईमान लेकर आएंगे, तो यहूदी और नसारा भी एक्चुअली जो है वो हिदायत पर आएंगे। वो क्या कहते हैं, तुम यहूदी और नसारा हो जाओ, तुम हिदायत
पालोगे तो अल्लाह ताला कह रहा है जैसे कि हम ईमान लाए हैं वैसे वो ईमान लाएंगे तब वो हिदायत पाएंगे। व इन तवल्लौ, और अगर उन्होंने मुंह फेर लिया, फइन्नमा, तो बेशक वही हम फी शिकाक, तो वही है अपनी जिद में या मुखालिफत में। यानी कि वो हक जान कर भी अगरचे हक की तरफ नहीं आ रहे हैं, अपना मुंह फेर रहे हैं, तो मतलब क्या है, वो असल में जिद कर रहे हैं, वो मुखालिफत कर रहे हैं। फसयक्फीकहुमुल्लाहु, तो अनकरीब वो काफी हो जाएगा तुम्हें, हम उन सब के मुकाबले में अल्लाह। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो वो या वो रहेगा, लेकिन यहाँ पे फाइल ऑलरेडी आ गया है तो अल्लाह, अल्लाह काफी है तुम्हारे लिए उन सब के मुकाबले में। यानी कि वो सब हमारी मुखालिफत करते रहे, यानी कि आज के ज़माने में भी हम अपने आप को ये हिम्मत दें कि अल्लाह ताला यही बता रहा है ईमान वालों को कि चाहे कोई भी हमारे खिलाफ कोई भी साजिश कर ले, जब तक हम ईमान पर हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है तमाम दुश्मनों के मामले में। तो हमें दुश्मनों से डर कर अपने ईमान से नहीं मुंह मोड़ना है, बल्कि सबसे मुंह मोड़कर हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना है, और अल्लाह हमें काफ़ी हो जाएगा तमाम ही हमारे दुश्मनों से। वहुव समीउल अलीम, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के हालात से वाकिफ नहीं है और अपने बंदों को अकेला इस दुनिया में अपने दुश्मनों की मुखालिफत में अकेला छोड़ देगा, बल्कि अल्लाह ताला सुनने वाला है और जानने वाला है, और वो बेहतरीन रास्ते निकालेगा। सिबगतल्लाहि, अल्लाह का रंग, वमन अहसनो, और किसका अच्छा है, उसमें भी सबसे अच्छा है। अहसन मुबालगे का सीगा, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, सबसे अच्छा। मिन अल्लाह, अल्लाह से, सिबगा यानी कि अल्लाह के रंग के सिवा किसका रंग अच्छा है। रंग का मतलब होता है कि तरीक़ेकार, जो अल्लाह ने हमें बता दिया उस तरीके से बढ़कर बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। आज भी बैठकर हम जब एनालाइज करेंगे तो अल्लाह ताला की शरीयत पर अगर जो अमल पैरा हो जाए, दुनिया में सब लोग हर जगह शरीयत को लागू कर दें, दीन को कायम कर दें, तो हर एक की जिंदगी में सुकून, इत्मीनान और खुशहाली आ जाएगी। दुनिया में हर तरफ से जो है दहशत, नाइंसाफियाँ, कत्ल गारत गिरी और जुल्म का खात्मा हो जाएगा, गुर्बत खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लोग क्या बनाकर बैठे हैं, एक इमेज के इस्लाम असल में आज के दुनिया में, आज के हालात में जो है सूटेबल नहीं है। हम शरीयत पर अमल नहीं कर सकते, हम इस्लाम पर अमल नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ताला बता रहा है कि अल्लाह का रंग, यानी कि अल्लाह का दिया हुआ इल्म जो है सबसे बेहतरीन है, उसी से जो है इंसान की दुनिया और आखिरत संवर सकती है। वनहनु, और हम लहु आबिदून, उसी की इबादत करने वाले हैं। तो जिसको समझ आ जाए कि अल्लाह का रंग सबसे बेहतरीन है, तो वो अल्लाह के उस रंग में अपने आप को रंगने के लिए तैयार हो जाएगा। अल्लाह के रंग में रंगना मतलब क्या है, उसी की इबादत करना, उसने जो कहा, जैसे कहा वैसी जिंदगी गुजारना। कुल कह दो, अतुहाज्जुनना फिल्लाहि, आ क्या तो तुम, हाजूना, फ़अलूना के वजन पे या तफ़अलूना के वजन पर, तुम करते हो, क्या करते हो, हुज्जत, तुम हुज्जत करते हो हमसे, नून अलिफ ना यहाँ पे हमसे, तुम हुज्जत करते हो हमसे अल्लाह के बारे में। वहुवा, और वो रब्बुना, हमारा रब है, व रब्बुकुम, और तुम्हारा भी रब है। यानी कि ये खूब जानते हैं कि वही रब के बंदे हैं हम भी और वो भी। आज के हालात में भी देख लें, यहूदी और नसारा को छोड़ दें आप, हमारे मुसलमानों में ही देखिए, हम जो फिरके फिरके बनाए हुए एक दूसरे को अपना दुश्मन बनाए बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा वही रब है, वही हमारी मिल्लत है, वही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पैरोकार हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ हुज्जतें करते रहते हैं। तो यहाँ से भी हमें सीखना चाहिए कि वो हमारा भी रब है और आपका भी रब है। तो आपस में ये झगड़ना, ये फिरके कैसे, आपस में एक दूसरे से नफरतें कैसी। वलना आमालुना, और हमारे लिए हमारे अमाल हैं, वलकुम, और तुम्हारे लिए आमालुकुम, तुम्हारे अमाल हैं। और अगर किसी फिरके को ये लग रहा है कि वो ज्यादा हक पर है, तो वो अपने, उसके अमाल उसके साथ हैं, किसी और के अमाल पर वो क्यों दुश्मनी में उतर आ रहा है।
वनहनु और हमारे लिए, और हम लहू उसी के मुखलिसून, उसी के खालिस हैं, उसी के लिए खालिस हैं। किसके लिए? अपने रब के लिए। हर कोई अपने रब से मोहब्बत करता है। अब जिसको जहाँ से जिसका इल्म का सोर्स जो रहा, उसके तहत वो अपनी अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश कर रहा है, उसके मुताबिक वो अपने अपने आप को हिदायत याफ्ता समझ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए उसके अमाल है, और सामने वाला गलत है सही है जो भी है, उसके अमाल उसके साथ है। तो हमें आपस में एक दूसरे से नफरतें दुश्मनियां नहीं करनी चाहिए। अम तक़ूलूना, क्या तुम कहते हो, इन्न बेशक इब्राहीम इब्राहीम व इस्माईल और इस्माईल और इसहाक व याकूब वल अस्बाता और औलाद, कानू थे हुदन यहूदी। क्या तुम ये कहना चाहते हो, यानी कि यहूदियों से पूछा जा रहा है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये सब जो रसूलों को तुम मानते हो, क्या ये सब यहूदी थे? या फिर नसारा से पूछा जा रहा है, क्या ये रसूल जो है या उनके औलाद जो है, क्या वो नसारा थे? कुल, कह दो, अंतुम आलमो, क्या तुम ज्यादा जानते हो? ये अगेन आलमो मुबालिगे का सीगा है। मैं जानता हूँ के लिए भी आलमो ही आता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में समझ आ जाएगा अंतुम, क्या तुम, और मैं जानता हूँ तो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए अंतुम, क्या तुम ज्यादा जानते हो, आमिल्लाह या अल्लाह, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह। यानी कि जब अल्लाह ताला बता रहा है कि ये सब जो है हनीफ थे, यानी कि वाहिद अल्लाह को मानने वाले थे और यही सच्चा दीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, अल्लाह की तरफ से उन पर किताब नाजिल हो रही है, कुरान नाजिल किया जा रहा है, तो आप उसकी पैरवी करो, उनकी पैरवी करो। तो तुम क्यों कह रहे हो कि यहूदी और नसारा ही जो है ज्यादा हिदायत पर है या राह रास्त पर है? वमन अजलमो, और कौन बड़ा जालिम है, अजलम भी सुपरलेटिव डिग्री, और कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन, उससे जो कतमा शहादतन, कतमा छुपाए, शहादतन गवाही, इंदहु उसके पास, मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से है। यानी कि इन सब की किताबों में ये चीज वाज़ेह है, क्लियर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, वो आखिरी नबी होंगे और उन्हीं पर हमें जो है ईमान लाना है। ये लोग बखूबी जानते हैं, कौन? यहूदी और नसरानी, लेकिन ये सिर्फ अपनी अना में, अपने तासुब में जो है उन्होंने इस बात को छुपा लिया है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि सबसे बड़ा जालिम कौन है? वही है जिसने अल्लाह की तरफ से आई हुई शहादत को, यानी कि गवाही को छुपा लिया है। वमल्लाहु बिगाफिलिन, और हरगिज नहीं अल्लाह गाफिल, अम्मा तामलून, उससे जो तुम करते हो। तिल का उम्मतुन, वो एक उम्मत थी, गुजर गई, कद खलत, गुजर गई, लहा उसके लिए, माँ का सबत जो उसने कमाया, वलकुम और तुम्हारे लिए, माँ का सब तुम जो तुम कमाओगे। यानी कि आप इसी बात में खुश होकर ना बैठ जाओगे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, या मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, या ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, और वो सब बहुत पहुंचे हुए पैगंबर हैं। वो वो उनके लिए उनके अमाल है। अब तुम्हारे लिए वो है जो तुम कमाओगे। अब तुम्हारे लिए करना क्या है? तुम्हें अल्लाह पर ईमान लाना है, तुम्हें आखिरी नबी पर ईमान लाना है। वला तुसलून, और नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा, अम्मा कानू या मलून, उस बारे में जो वो करते थे। तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे, वो कितने नमाजी थे, वो कितने नेकोकार थे, वो उन्होंने क्या कुछ सदका किया। यानी कि आज के दौर में हम अपने ऊपर इस चीज को लेकर देखें कि हमें हमेशा दूसरों की फिक्र रहती है, तो हमारे लिए भी एक यही है कि हम दूसरों को ना देखें, उनके लिए उनके अमाल है, हमारे लिए हमारे अमाल है। हमें वो कर हमारे से जो सवाल किया जाएगा उन कामों पर हमारा फोकस होना चाहिए। हम अपने आप को अल्लाह की इताअत में लगाएं। ये ये ना देखेंगे वो क्या कर रहे हैं, उनकी नमाज कैसी है, वो कितना झूठ बोल रहे हैं, वो कितना गीबत कर रहे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, वो हिजाब करती हैं या नहीं। दूसरों की फिक्र में ना रहें, अपने आप को संवारने की कोशिश करें हर दिन। तो ये कोशिश करें कि हम हमारे में से कोई बुराई दूर हो जाए, हम अपने रब के ज्यादा से ज्यादा करीब होते जाएं, अपनी औलाद को हम दीन से जोड़ें, ताकि वो हमारे लिए सदक़े जारिया बने।
یہ نہ ہو کہ ہم ایسی اولاد کو چھوڑ کر جائیں کہ ان کی وجہ سے ہم تک گناہ پہنچتا رہے، کیونکہ آج ہم نے کوشش نہیں کی اپنی اولاد کو صحیح مسلمان بنانے کی، مکمل مومن بنانے کی، وہ نمازی نہیں ہے، وہ روزدار نہیں ہے، وہ یا ہماری بیٹیاں ہیں حجاب نہیں کرتی ہیں، محرم اور غیر محرم کا فرق نہیں کرتی ہیں، تو اس بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے، ہم آج اپنے آپ کو کن کاموں میں لگائے ہوئے ہیں اس بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو امانت اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ہے اپنی اولادیں ان کو ہم کیا بنا رہے ہیں اس بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، تو اس پر ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کریں، پھر اپنے علم پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں حکمت دیں کہ ہم اس علم پر عمل کریں، اور اپنی اولاد کو اللہ کے نیک اور فرما بردار بندے بنانے کے لیے جو حکمت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی حکمت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔